انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس، سپریم کورٹ نے وفاق صدر، الیکشن کمیشن، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنرز کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی، چاہتے ہیں انتخابات آئین کے مطابق ہوں، اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار وضاحت طلب ہے۔ کیا اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں؟ نمائندے 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو کسی شخص کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ جسٹس منصور کا سوال۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا بھی نوٹس لیا جائے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر از خود نوٹس کیس نہیں بنتا، جیسے جمال مندوخیل کی آبزرویشن۔ ریمارکس دیے، ہمارے سامنے 2 اسمبلیوں کے اسپیکر کی درخواستیں ہیں، یہ از خود نوٹس جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے نوٹ پر لیا گیا۔ اس کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلایا گیا، جو کہ فریق نہیں ہے۔ پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم 9 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کو بینچ میں شامل نہ کرنے سے غیر جانبداری عیاں ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی رضاکارانہ طور پر خود کو بینچ سے الگ کر لیں گے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر۔ جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس وکیل میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے انفرادی طور پر جمع کروایا گیا، جس پہ سپریم کورٹ کے جج پر مس کنڈکٹ اور ناجائز اثاثے بنانے کا الزام عائد کیا گیا۔ صدر کے خط کے بعد وزیر اعظم بھی متحرک۔ مشاورتی اجلاس میں وزیر اعظم نے رہنماؤں کو صدر کے خط پر اعتماد میں لے لیا۔ اجلاس میں صدر کو بھجوائے جانے والے خط کے متن پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، صدر مملکت غیر آئینی اقدامات سے گریز کریں۔ صدر دوسری بار آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ صدر مملکت کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تاریخ دینے کا معاملہ الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس از خود نوٹس کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن صدر کے احکامات پر اب خود فیصلہ نہیں کرے گا۔ الیکشن کمیشن صدارتی احکامات پر اپنا موقف سپریم کورٹ میں پیش کرے گا۔ لوگ یہ ساتھ دیں گے آئین کا، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو جج تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اس کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی جاتی ہے اور اس کو ایک پوری طریقے سے پھر اس کو میڈیا گروپس اٹھاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں اگر وکیلوں نے، اور میں یہ جج صاحبان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ کی طاقت جو ہے وہ وکیل ہی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں 5 جج صاحبان جنہوں نے اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کر کے موجودہ حکومت اور کابینہ کی تشکیل کی بنیاد رکھی، وہ اس 9 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ تحریک انصاف تو ان جج صاحبان پر کوئی اعتراض نہیں کر رہی۔ حکومت اور مخصوص صحافی سپریم کورٹ کو متنازع کیوں بنا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ نے سی سی پی او غلام محمود جوگر کی بحالی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 17 فروری کو غلام محمود جوگر کی بحالی کا حکم سنایا تھا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ غلام محمود جوگر کا معاملہ پہلے سے سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ غلام محمود جوگر کی ٹرانسفر کا 23 جنوری کا حکم برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ ملک کے موجودہ حالات کا ذمہ دار عمرانی ٹولہ ہے، انہیں فتنہ خان کی شکل میں کٹ پتلی چاہیے تھی۔ ٹولے کا سرغنہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کا الزام، سرگودا میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سازش گھڑی چوٹ کے خلاف نہیں، سازش در حقیقت نواز شریف کے خلاف ہوئی۔ جس شخص کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا، اسے پارٹی کا صدر بنا دیا گیا۔
इंतखाबात में इमरान खान के फितने को शिकस्त फाश देंगे। वफाकी वजीर दाखिला का दावा। राना सनाउल्लाह खान कहते हैं आईन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। तब्दीली वालों ने मुल्क तबाह किया। नून लीग पहले की तरह दोबारा मुल्क की तरक्की को राह पर लाएगी। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। लाहौर के बाद पेशावर में जेल भरो तहरीक पीटीआई के साबिक एमपीएस गिरफ्तारियां पेश कर दें। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जबरदस्ती पेशावर जेल में घुसने की कोशिश। नामालूम अफराद ने पुलिस वैन के टायर्स पंक्चर कर दिए। पेशावर में दफा 144 नाफिज है। वजीर आजम के मुशीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि 2 दिन जेल में ज़ारो कतार रोने वालों को हथकड़ी चूमने की बातें जेब नहीं देती। उस्ताद फिलिस्टर वी कब जेल जाने की तारीख देंगे। कौम वो ऐलान सुनना चाहती है। जेल भरो तहरीक में भी जेब भरो तहरीक वाला मिसाली जज्बा दिखाएं। जमानतें करवाकर जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं, गिरफ्तारी देते हैं और फिर कहते हैं पुलिस ने एक्शन किया तो छोड़ेंगे नहीं। सवाबी में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जिला भर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। 5 अफराद के एक साथ इकट्ठे होने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर से गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमा डीजी खान मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती समेत दीगर शामिल कारकुनों को राजनपुर, रहीम यार खान, लिया की जेलों में भेजा गया। तमाम अफराद को 3 MPO के तहत बंद रखने का फैसला किया गया। जैन कुरैशी ने वालिद शाह महमूद कुरैशी की बाजियाबी के लिए अदालत का दरवाजा खटका दिया। वाइस चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश कराने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। आज बड़े अहम 72 घंटे हैं। सुप्रीम कोर्ट, इस मुल्क का अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और अदलिया इस मुल्क को बचा सकती है। बाकी तो चोर डाकू लुटेरे मुसल्लत हो गए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आइंदा 72 घंटे मुल्क की सियासत में बहुत अहम करार दे दिए। कहते हैं कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है, बाकी सबसे मायूसी है। अदलिया ही इस मुल्क को बहरान से निकालेगी और चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। पाकिस्तानी नौजवान बासलाहियत मौका मिलने पर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। वजीर आजम का यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की तारीख में बिला जवाब 2300 अरब रुपए के कर्ज मुआफ कराए जा चुके। नौजवान ही सरमायादार कर्ज मुआफ कराते हैं। नौजवानों को भरपूर सहूलियात फराहम की जाएंगी। सदर मुल्क ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी। डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। तमाम गुजरा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करें। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं। वफाकी गुजरा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 स्टार होटल में क्याम नहीं करेंगे। मावन अमला साथ ले जाने की इजाजत नहीं होगी। किफायत शौहरी मुहिम पर अमल दरामद की निगरानी खुद करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं किफायत शौहरी मुहिम से सालाना 200 अरब रुपए की बचत होगी। इत्तेहादियों की जानिब से हिमायत पर मशकूर हूँ। मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बायस इत्तेहादियों और काबीना अरकान ने इजहार यकजहती किया। इत्तेहाद और इज्तिमाई इक़दाम से मुश्किलात से निकला जा सकता है। IMF ने पाकिस्तान से मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने का मुतालबा कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने से शरह सूद बढ़ने का खदशा। IMF की जानिब से महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती के लिए दबाव दिया जा रहा है। बिजली के दाम मजीद बढ़ने का खदशा। मौखर अदायगियों की मद में बिजली सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 14 रुपए 24 पैसे तक महंगी होने का इम्कान। विफाकी हुकूमत ने वसूली की दरखास्त दायर कर दी। नेफा 2 मार्च को समाअत करेगा।
इंटर बैंक में डॉलर 97 पैसे सस्ता 260 रुपए 93 पैसे का हो गया। कोर्ट एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात कराने का इख्तियार था। साइफर खाजापुर में आता है जो विफाकी हुकूमत का मामला है। दरखास्त गुजार साइफर से बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए चैम्बर अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध कोल अथॉरिटी करप्शन केस में आइंदा समाअत पर डीजी नैब कराची को तलब कर लिया। जस्टिस असर बिन ने रिमार्क्स दिए, नैब भी काबिल है, नैब तहकीकात मुकम्मल करने में ताखीर नहीं कर सकती। अदालत ने नैब इक़दामात का एहतसाब करना है। नैब गैर जरूरी तौर पर मुल्जिमान को हरासा न करे। रेलवे की जमीन गैर कानूनी तौर पर लीज पर देने से मुतालिक नैब का केस सुप्रीम कोर्ट ने नए नैब कानून के तहत रेफरेंस वापस होने की बिना पर अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, मामला रेलवे की जमीन का था, लेकिन क्या करें, कानून कानून है। लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना की तफसीलात फराहमी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत से 2002 से कबल का तोशाखाना का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि वफाकी काबीना ने 2002 से अब तक तोशाखाना का रिकॉर्ड ओपन कर दिया है। पहले का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड नहीं किया जा सका। लाहौर हाई कोर्ट में विफाकी काबीना की अरकान की तादाद को चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में वुज़रा और मुआविनीन की तादाद में कमी की इस्तदा की गई है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि विफाकी काबीना अरकान की तादाद आइन में मुकर्ररा तादाद से मुताबिकत नहीं रखती। कौमी असम्बली में ऐलान के मुताबिक अरकान की तादाद 42 से ज़ायद नहीं हो सकती। लॉन्ग मार्च जलाओ घेराव से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकदमे का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट पेश न करने पर बरहम हो गई। अदालत ने तफ्तीशी से कहा, हमें क्या पता कि यूएसबी में गाने हैं या फिल्में। अदालत ने कहा, डीएसपी लीगल रिकॉर्ड के साथ आइंदा समाअत पर पेश हो। बारखां के कुएं से लाशें मिलने का वाकया सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। खान मोहम्मद मरी की बीवी, नाज, बेटी और 4 बेटों को बाजियाब करा लिया गया। मुखबियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में अमल में लाया गया। तमाम अफराद सरकार की हिफाजती तहवील में हैं। ये जो लाश बच्ची की है 17 से 18 साल की उम्र की तकरीबन, और जो है जो मैंने पोस्टमार्टम किया उसमें शादीशुदा नहीं लग रही है, कोई उसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। हाँ, ज्यादती हुई है उसके साथ, किसी बड़ी खातून की ये लाश नहीं थी। बारखान में कत्ल होने वाली खातून का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा कहती हैं, कत्ल होने वाली 45 साल गरानाज नहीं बल्कि 17 साल लड़की है। ज्यादती के बाद गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मरने के बाद लड़की के चेहरे को तेजाब डालकर मसख किया गया। दूसरे मरने वाले दोनों नौजवानों को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया।